Good morning, students. Hope you understand the non-discounted capital budgeting techniques. Now, in this lecture, we are going to cover a discounted cash flow techniques. In discounted cash flow techniques, basically our traditional methods that we studied in our last lecture have a serious limitation. That is, it will not include a time value of money concept. As you understand, the time value of money is very important during capital budgeting, because here you are going to earn a profit in number of years, not immediately, not within a year only. So we need to consider the time value of money concept. It is very crucial for investment, such that the sum received today is worth more than the sum received tomorrow, and it give equal weightage to the present and cash flow of income. That's why, to avoid that limitation, we are using a discounted cash flow technique. Our first most important technique of capital budgeting is net present value. Net present value means you are discounting both your inflow and your cash outflow. Okay, the discount rate means the hurdle rate, or you can say the required rate of return, or you can say the required minimum rate of return, or in easy language we can say it's a cost of capital only. It means the cost of capital is suppose 10%, it means your discount rate is 10%. At least from your investment you will earn 10% minimum. ओके तो यहाँ पर डिस्काउंट रेट का मतलब होता है आपका एक हर्डल रेट या ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जो आपको अर्न करना ही करना है, तो उससे आप अपनी अर्निंग्स को डिस्काउंट करके फिर चेक करते हैं वेदर दिस प्रपोजल और वेदर दिस इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल टू मी और नॉट. क्लियर? Here we calculate net present value with this method. Net present value of cash inflow मीन्स जो आपकी ऑपरेटिंग सेविंग है माइनस टोटल कैश आउटफ्लो. ओके, the decision rule is, if net present value is positive, it means you go for investment, and if it is negative, straightforward you say no to the investment. And if there is more than one project, the higher NPV is better. जिसकी net present value ज़्यादा होगी वो एसेट आपके लिए ज़्यादा बेटर है इन्वेस्ट करने के लिए. ओके, एंड द merits and demerits of net present value is, it merit means आपका ये time value of money, the most important concept of finance, it cover it, and entire cash flow irrespective of time of occurrence it going to consider. It is based on your cash flow rather than your accounting profit. Then both even or uneven cash flow can be used over here, and it is very useful for mutually exclusive project. जहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर हम एनपीवी हमारे लिए बेटर होता है. ओके, बट इट हैज़ demerits also. It is complicated method. It is very tough sometime to decide rate of return. हमें कितनी परसेंटेज से डिस्काउंट करना है, it is a difficult job. Then project have different investment are not analyzed properly. अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग हैं, ठीक है, मीन्स एक प्रपोजल है जिसमें आपको 2 लाख इन्वेस्ट करना है, एक प्रपोजल है जिसमें आपको 2,50,000 करना है, तो एट दैट टाइम इट क्रिएट सम प्रॉब्लम. देन नॉट प्रोवाइड सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट इन केस ऑफ प्रोजेक्ट हैव डिफरेंट इकोनॉमिक लाइफ. अगर इकोनॉमिक लाइफ अलग अलग है तो भी आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है. हो सकता है एक प्रपोजल आपका 5 ईयर के लिए, दूसरा प्रपोजल आपका 3 ईयर्स के लिए हो. ठीक है, तो दीज आर द demerits ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू. Second method is your profitability index that we are using here. Profitability index is the solution, you can say, the major problem कि अगर आपका जो proposal है उसमें आपके जो initial investments हैं वो अलग अलग हैं. At that time profitability index is used. Profit index is simple a benefit cost ratio. It is a relative method, means in relation to the investment you are calculating your proposal.
तो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, यू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जो भी आपका कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं और उसको डिवाइड कर रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने नेट इन्वेस्टमेंट पहले किया है। ठीक है, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1 द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, and if it is less than 1 proposal is rejected. Okay, and one of the major demerit of net present value method is that it cannot be applied to compare those mutual exclusive projects which have differ in cost. ठीक है, मीन्स अगर दो प्रपोजल आपके पास अलग अलग कॉस्ट के हैं तो उनको हम इवेल्यूएट नहीं कर पाते, तो एट दैट टाइम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड इज अप्लाइड। एंड वेयर द प्रोजेक्ट हैव डिफरेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जैसे अभी आपको मैंने बताया था 2 लाख है और दूसरे का आपका 2,50,000 अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो दोनों प्रपोजल उनको इवेल्यूएट करना एनपीवी से हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो एट दैट टाइम ऑल्सो प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड इज यूज्ड, बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड इज नॉट एब्सोल्यूट मेथड, इट इज अ रिलेटिव मेथड ऑफ मेजरमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? Then the merits and demerits of present value method. Merit is it give proper weightage to the time value of money. Okay, and it evaluate the worth of project in terms of the relative magnitude, means relative figures के basis में cash inflow को cash outflow के साथ match करके compare कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से अगर आपकी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है दो प्रपोजल्स में तो भी हम इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड and calculation is little bit difficult, and in some case of mutual exclusive nature NPV method would be superior to this method. Then internal rate of return. This internal rate of return I will cover in our next lecture. Now we are going to cover the numerical part of our NPV. Here, net present value. It from exam point of view also this is very important, students. Suppose we have two machines X and Y. The cost of machine is 56,125, 56,125. Estimated life is similar. Then the salvage value is 3,000, 3,000. Now annual income after tax and depreciation. Remember, here is the average income, or you can say operating saving after depreciation and tax both. And you remember we are taking operating saving that is before depreciation. It means you need to adjust your cash flows now. Okay. Then a machine overhauling charges at the end of third year is 25,000 आपने मशीन में और इन्वेस्ट किया। डेप्रिसिएशन आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से यूज़ हो रहा है यहाँ पर। ओके, देन डिस्काउंटेड रेट मीन्स 10% से आप अपना जो है डिस्काउंट कर रहे हैं। रिमेंबर टाइम वैल्यू ऑफ मनी न्यूमेरिकल्स, वही सेम मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पर आपको मैंने टेबल से वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कि 10% 5 ईयर की वैल्यू क्या है। 1 रुपये की वैल्यू फर्स्ट ईयर में 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। ये अगर क्वेश्चन में गिवन है देन इट्स ओके, अदरवाइज यू नीड टू सी द टेबल्स। Suggest which project should be accepted. Now, the present value of cash outflow. Cash outflow आपका जिस ईयर में हुआ है उसी ईयर में की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, तो वो आपके इसमें कोई टाइम एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। सपोज यू आर इन्वेस्टिंग इन 2020, तो इट मीन्स 2020 में आपको टाइम वैल्यू 0 ईयर है, एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका दोनों मशीन में। देन ओवरऑलिंग चार्जेस। ओवरऑलिंग चार्जेस यू रिमेंबर आपका कब हुआ था? थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर में जो आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, कैसे निकालेंगे? थर्ड ईयर में, सी हियर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर।
थर्ड ईयर में 1 रुपये की वैल्यू क्या थी 0.751, तो इट मीन्स 0.751 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू। मीन्स 25,000 की वैल्यू, 25,000 जो मैं मेरे हैं उनकी वैल्यू आज की डेट में कितनी है 18,775 ओनली। ओके, क्योंकि आउटफ्लो है, आपने खर्च किया है, इसलिए आपको इसके साथ इसे ऐड करना है। तो टोटल आउटफ्लो मशीन एक्स में आपकी कितनी है 74,900, मशीन वाई में 56,125। नाउ डेप्रिसिएशन, दोनों ही मशीन की कॉस्ट कितनी आ रही 56,125 टोटल। ओके, एंड 3,000 स्क्रैप आप माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 5, इट मीन्स स्ट्रेट लाइन मेथड से तो डेप्रिसिएशन आपको कितना है 10,625। नाउ सी हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, क्योंकि हमें पहले नेट आपका कैश फ्लो चाहिए। तो कैश फ्लो आपका जो क्वेश्चन में गिवन था, आपके नंबर ऑफ ईयर्स आ गए, फिर ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, कैश फ्लो और प्रॉफिट एक ही बात है। तो कैश फ्लो यहाँ पर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आपके पास आ गया जो क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको जो चाहिए वो कैश फ्लो हमें चाहिए जिसमें डेप्रिसिएशन बिफोर हो। तो आपने सारे डेप्रिसिएशन नोट कर दी। नाउ यू आर गोइंग टू ऐड इट 3,375 प्लस 10,625, दैट इज 14,000, 16, 18, 20, 22,000। ओके, तो दिस इज द कैश फ्लो दैट वी नीड फॉर आवर कैलकुलेशन। देन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% में हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, अदरवाइज वी नीड टू टेक प्रेजेंट वैल्यू टेबल 0.909, 826, 751, 683, 621। नाउ सिंपल मल्टीप्लाई दिस, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए यू रिमेंबर 14,000 इंटू 0.909, इट मीन्स एक साल के बाद 14,000 की वैल्यू कितनी होगी 12,726 ओनली, सबके साथ ऐसी। देन टोटल इज 66,782 ओनली। नाउ द वैल्यू ऑफ द स्क्रैप, क्योंकि वैल्यू ऑफ स्क्रैप भी हमें यहाँ ऐड करनी, क्योंकि वो भी हमारा कैश फ्लो है, इनफ्लो। क्योंकि जब आपने कूड़ा बेचा है, कबाड़ बेचा है, तो वो आपको एज ए इनकम कैश फ्लो हुआ है, आपके पास आया है कैश, ठीक है, इनफ्लो है। तो उसकी वैल्यू आपने निकाली, क्योंकि ये हमारा एट द एंड ऑफ द ईयर है, 5th ईयर। तो 5th ईयर में जो 3,000 है उसकी वैल्यू आज की डेट में कितनी है, इट्स ओनली 1,883। तो टोटल कैश इनफ्लो कितना है 68,645। नाउ सेम दिस विद मशीन वाई। Okay, in machine Y you are getting 71,521. Now see, excuse me students, ऑपरेटिंग सेविंग एंड नेट इन्वेस्टमेंट। मशीन एक्स में हमारी ऑपरेटिंग सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो जब हमारी इनकम जो है कैश फ्लो कम आ रहा है, तो क्या आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे? नो। बट वाई के केस में क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट तो कम है बट अर्निंग ज़्यादा है, तो यू विल एक्सेप्ट वाई प्रोजेक्ट। ओके, और एनपीवी टेक्निक से, इट्स अ प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, इट्स अ एनपीवी, इसमें हम इसको डिडक्ट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी प्रपोजल 1 में 68,645 माइनस 74, इट मीन्स माइनस। तो नेगेटिव अगर एनपीवी है तो हम उस प्रपोजल को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वाई में पॉजिटिव है तो वी गोइंग टू एक्सेप्ट वाई। और अगर ये दोनों ही पॉजिटिव होते तो जिसकी एनपीवी हायर होती दैट प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड। ओके, नाउ इस सेम क्वेश्चन में अब हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ओके, तो अब आप देख रहे होंगे ये पेबैक पीरियड का जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर मशीन एक्स का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आ रहा था 68,645 एंड आउटफ्लो कितना था 74,900। तो इट मीन्स 0.916। अब 0.916 है, इट इज लेस देन 1। अभी लेस देन 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है। आप देख रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये आपका लेस देन 1 ही आएगा। तो दिस प्रपोजल विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इन रिलेटिव टर्म ऑल्सो।
मीन्स बेनिफिट को कॉस्ट के साथ रिलेट करके आप देख रहे हैं. And machine Y is acceptable because it is more than 1, that is 1.27. Clear, students? So you are going to accept this machine Y for your investment. Okay. Now in next lecture we are going to cover our most important technique of capital budgeting, that is IRR. Hope you understand the concept.